نمل، یہ میرا ٹیسٹ ہے۔ میں تیمارداری کر کے نمبر بنا لوں یا پڑھائی کر کے بہانے سے نظروں سے غائب ہو کر اپنا فرض ادا کر لوں، اور اگر برا بندہ ہوں تو بن جاؤں، مگر مجھے اس ٹیسٹ میں فیل نہیں ہونا۔ تم اس سے بات کر کے دیکھو۔ نہیں نا، اگر پھپھو کو پتہ چلا کہ یہ میرا کرتا ہے تو وہ کبھی نہیں لیں گی۔ پھپھو مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، میں ان کا بھائی بھی ہوں، دوست بھی اور بیٹا بھی۔ وہ مجھے کبھی اس تکلیف سے نہیں گزارنا چاہیں گی۔ تو ہم پھپھو کو کیا کہیں گے؟ سوئی ہوئی حنین جیسے جاگی۔ دماغ کام کرنے لگا۔ کسی سے ملوا دیں گے، کسی کو راضی کر لیں گے اس کام پہ۔ یہ سادی کو مسئلہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار بے چینی سے گھڑی دیکھتا، اسے رپورٹس کا انتظار ہے، مگر کس سے؟ سادی نے اکتا کر حنین کو دیکھا۔ یہ بعد کی بات ہے۔ تبھی دروازہ ہلکا سا بجا۔ حنین چونک کر مڑی۔ چوکھٹ پہ علیشہ کھڑی تھی، مسکراتی ہوئی، سفید ٹراؤزر اور بھوری شرٹ میں، کوہنی پہ بیگ ٹکا تھا۔ میں تمہاری آنٹی کو دیکھنے آئی تھی، وہ نرمی سے کہتی آگے آئی۔ حنین نے سادی کو دیکھا، سادی نے حنین کو، پھر دونوں نے علیشہ کو دیکھا۔ بھائی، کیا آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہی ہوں؟ کہ یہ مان جائے گی تھوڑی اداکاری پہ؟ دونوں نے دبی دبی آواز میں فکروں کا تبادلہ کیا۔ علیشہ نے باری باری ان کے چہرے دیکھے۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ آف کورس۔ حنین کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ جلدی سے ایک کرسی سے چیزیں ہٹائیں، اسے جگہ بنا کر دی۔ سادی اٹھ کر چوکھٹ پہ جا کھڑا ہوا۔ نگاہیں راہداری میں لگے کلاک پہ ٹکی تھیں۔ بڑے ابا اپنی سوچوں میں الجھے تھے۔ علیشہ نزاکت سے بیٹھی، گھٹنے ملا کر پر زمین پہ رکھا۔ حنین ساتھ والی کرسی پہ آگے ہو کر بے چین سے بیٹھی۔ مجھے تم سے ایک کام ہے علیشہ، کچھ دیر میں بتاتی ہوں۔ وہ بھی سادی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ رہی تھی۔ اوکے، علیشہ نے شانے اچکا دیے۔ اگر کڈنی میچ نہ ہوا تو؟ بڑے ابا نے اپنی ہی سوچ میں سوال کیا۔ تو پھر کسی اور کو دینا پڑے گا، مگر کس کو؟ وہ حنین سے سوال کر کے خود خاموش ہو گئے۔ حنین نے نظریں جھکا کر خود کو دیکھا، پھر اپنے بازو کو۔ آستین ذرا تنگ تھے۔ اس نے 2 انگلیاں بٹن پہ رکھ دیں، جیسے اسے کھول کر آستین اوپر چڑھانے پہ تیار ہو۔ انگوٹھے سے بازو کے اوپر لکیر کھینچی۔ کون سی رگ ہے جس میں سے ٹیسٹ کے لیے خون نکالا جاتا ہے؟ تم نے بتایا نہیں۔ میرا گفٹ کیسا لگا؟ علیشہ موبائل پہ بٹن دباتی پوچھ رہی تھی۔ حنین نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا، پھر پھیکا سا مسکرائی۔ وہ لاکٹ، اس پہ بھی تمہاری کی چین والی عبارت درج تھی۔ وارث کے قتل کے بعد جب وہ اور فارس علیشہ کے کمرے سے نکلے تھے، تب اس نے حنین کو جو تھمایا تھا، اس میں سے سیاہ ہیرے کی شکل کا کٹا پتھر جڑا لاکٹ نکلا تھا۔ اس نے بہت دن بعد کھولا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگا، مگر اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہمیشہ کے لیے چونٹیاں۔ وہ انگلی ابھی تک بازو کی رگ پہ رکھے بیٹھی تھی۔ علیشہ نے آہستہ سے موبائل رکھا، اسے دیکھ کر پھیکا سا مسکرائی۔ تم نے مجھ سے کوئی کام کہنا تھا؟ ہاں۔ وہ کیا تم میری آنٹی کو یہ کہہ سکتی ہو کہ تم ان کو اپنی مرضی اور خوشی سے کڈنی ڈونیٹ کر رہی ہو؟ دراصل جو رشتہ دار ڈونیٹ کر رہا ہے وہ اسے لینا نہیں چاہے گی، اور وہ جلدی جلدی ساری بات سمجھاتی گئی۔ مگر میں تو رات کی فلائٹ سے واپس جا رہی ہوں۔ اوہ، کیا تم رک نہیں سکتی؟ کیا تمہارا کام ہو گیا جس کے لیے تم آئی تھی؟ نہیں، وہ تو نہیں ہوا۔ میں بھی کس امید پہ چلی آئی؟ تلخی سے مسکرا کر خود پہ افسوس کیا۔ حنین بے چینی سے آگے ہوئی۔ تم بس 5 منٹ کے لیے آنٹی سے مل لو، بعد میں ہم کہہ دیں گے کہ تمہیں دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اوکے۔ وہ متعامل تھی، مگر شانے اچکا دیے۔ حنین پھر سے مضطرب سی دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ ٹرانسپلانٹ میں تو کافی خرچہ آ رہا ہوگا، علیشہ نے برائے بات پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ سب اورنگزیب انکل کا سر درد ہے۔ علیشہ کا سانس رک گیا۔ بنا پلک جھپکے وہ حنین کو دیکھنے لگی۔
तुम्हारे वही अंकल जिनका तुम बहुत जिक्र करती हो। हाँ, पता नहीं हमारी अक्सर बातों में उनका जिक्र क्यों निकल आता है। ये सवाल पूछने का वक्त ज़हीन हुनैन के दिमाग को कभी नहीं मिला था। अब भी कहकर भूल गई। वही इलाज का खर्च उठा रहे हैं। मगर क्यों? हैरत ज़दा सी वो बमुश्किल पूछ पाई। हुनैन ने शाने उठाए। अभी तक चौखट को देख रही थी। वो फारिस मामू के बाप की जगह है और पप्पो मुसलसल फारिस मामू को इस सब का जिम्मेदार ठहरा रही हैं। तो औरंगज़ेब अंकल अपने भांजे की तरफ से इमदाद करना चाह रहे हैं। अलीशा से अगला सांस नहीं लिया गया। उसने चेहरा सामने को फेर लिया। थूक निकली, आंखों में आती नमी अंदर उतारी। इससे किसी ने रकम नहीं मांगी, वो फिर भी दे रही है, सिर्फ इसलिए कि वो फारिस के बाप की जगह है। हुनैन कितनी रहमदिल है ना। हुनैन ने इस बात में सर हिलाया। अलीशा जख्मी सा मुस्कुराई, सर झुकाकर उंगलियों में पकड़े की चैन को देखा। क्या तुम जानती हो हशरातुल अर्ज़ में सबसे ज़्यादा जहरीला कीड़ा कौन सा होता है? हुनैन ने नफ़ी में सर हिलाया। चौखट में खड़ा सादी गर्दन मोड़कर देखने लगा। वो हुनैन के साथ बैठी सर झुकाए किचन पे उंगली फेरते कह जा रही थी, चूंटी। मैरिकोपा हार्वेस्टर आंट दुनिया का सबसे जहरीला कीड़ा है। इस कीड़े को इंतकाम पे नहीं उकसाना चाहिए, वरना उसके कांटे से ताकतवर इंसान भी मर जाए। पता है, एक दफ़ा किसी ने मुझसे ये बात कही थी कि तुम सारी उम्र चूंटी रहोगी। मगर मुझे वो बात पहले बहुत बुरी लगी, फिर अच्छी लगने लगी, क्योंकि मैं चूंटी ही तो हूँ। सब कमज़ोर और बेबस लोग चूंटियों की तरह ही तो होते हैं। हुनैन बेध्यानी से सुन रही थी। वो खामोश हुई तो वो जल्दी से बोली, क्या तुम मेरी आंटी से मिल लोगी? इतना वक्त होगा ना तुम्हारे पास? अलीशा ने सर उठाया, मुस्कुराकर नम आंखों से उसे देखा। श्योर, मैंने इरादा बदल दिया है। मैं कुछ दिन मज़ीद ठहर सकती हूँ, अपना काम भी मुकम्मल कर लूँगी। हुनैन का चेहरा फरतम सरत से देखने लगा, दमकने लगा। उसने खुशी से अलीशा का हाथ दबाया। थैंक यू अलीशा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। कितना अजीब इत्तेफाक है ना कि ऐन इन दिनों में तुम आई जब हम इतने क्राइसिस में थे, मगर तुम हमारे साथ रही। अलीशा का रंग सफ़ेद पड़ा, हल्क में कुछ अटका। वो तो औरंगज़ेब करदार के इलेक्शन का सुनकर आई थी और वो खुद भी बेखबर थी कि ये इलेक्शन ना होते तो वारिस को शायद मोहलत दे दी जाती। मगर यहाँ के इलेक्शन अमेरिका से मुख्तलिफ होते हैं और हुनैन इस सब को एक इत्तेफाक समझ रही थी। हुनैन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मगर सदी को आते देखकर फ़ौरन आगे चला गया। तो हुनैन उम्मीद और खौफ के मिले जुले तासुर से खड़ी हो गई। बाजू की रग पे फिर से दूसरा हाथ रख लिया। फिर कभी सही। अलीशा उसका ध्यान न पाकर ढीली सी वापस बैठ गई। हुनैन चौखट तक आई, फिक्रमंदी से सामने देखा। सादी चंद कागज़ खोलकर पढ़ता हुआ नजर आ रहा था। बाजू पे रखा उसका हाथ मजबूत होता गया। टिच बटन खोल लिया, अब बस आस्तीन मोड़ना था। पहले ब्लड टेस्ट होता है क्या? उसे इल्म भी नहीं था। सादी ने गहरी सांस लेकर सफ़ात नीचे किए और लंबी मुसाफत की थकन से हन्ना का चेहरा देखा। फिर इस बात में सर हिलाया। पॉजिटिव। हुनैन का बाजू पे रखा हाथ बेदम सा पहलू में आ गया। उसने जर्द रंगत के साथ सर को खाम दिया। सादी अब पलट कर तेज़ी से आगे जा रहा था। उसे बहुत से काम करने थे। हर कुर्बानी का एक वक्त होता है और उस वक्त की एक एक्सपायरी डेट भी होती है। अस्पताल के कमरे में कुर्सी पे बैठी अलीशा को मशकूक अंदाज में घूरती तकियों से टेक लगाई। वो जुमर यूसुफ थी और वो इतनी जल्दी मान जाती नामुमकिन था। और आप मुझे अपना गुर्दा क्यों देना चाहती हैं? उसको हज़म नहीं हुआ था, इसलिए तफ्तीश शुरू कर दी। जवाब में अलीशा ने काफ़ी बेनियाजी से शाने उचकाए। मैं इस वाक़े का ज़िम्मेदार खुद को समझती हूँ। अगर मैं आपके ऑफिस आ जाती तो न आप उधर जाती, न दहशतगर्दी का निशाना बनती। मैंने टेस्ट करवाए हैं, गो कि मुझे कम उम्री से दमे की शिकायत है, मगर इसके अलावा मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ और डोनेट कर सकती हूँ। और आप चाहती हैं कि मैं इस वजह पे यकीन कर लूँ? जुमर ने तीखी नज़रों से मुसलसल उसका चेहरा देखते हुए कहा। ना करें, आपकी मर्ज़ी, मगर मैं दूसरी वजह भी ज़रूर बताना चाहूँगी। अलीशा ज़रा रुकी,
सामने बेचैन सी खड़ी हुनैन और करीब बैठे मुस्तरब से बड़े अब्बा को देखा। फिर उसी एतमाद से प्रोसिक्यूटर की आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे इस कुर्बानी के एवज आपकी फैमिली एक अच्छी कीमत दे रही है, जिसे मैं वापस जाकर यूनिवर्सिटी फ़ीस के लिए इस्तेमाल करूँगी। अपनी ज़िंदगी बनाने का इतना अच्छा मौका मैं ज़ाया नहीं करूँगी। अगर मज़ीद पैसे चाहिए हुए तो मैं उस कुर्बानी को किसी टीवी शो में अपनी कहानी चलवाकर कैश करवा लूँगी। आखिर में उसने बेफिक्री से शाने उचकाए। हुनैन के लब खुल गए। वो हक्का बक्का सी अलीशा को सुन रही थी। क्या उसने फ़र्ज़ कर लिया था कि अदाकारी सिर्फ जुमर पे ख़त्म हो जाती है? मगर ये इलीगल है। जुमर के फ़िक्रे पे वो सब चौंके। कानून के मुताबिक डॉक्टर कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता अगर वो खून के रिश्ते का ना हो तो। आप सब लोग मिलकर एक गैर कानूनी काम कैसे कर सकते हैं? आबरू बीच कर तहदीबी अंदाज में उसने बारी बारी इन तीनों के चेहरे देखे और बड़े अब्बा ने कई दफ़ा की सोची गई ख्वाहिश दिल में दोहराई, काश उन्होंने कभी इस लड़की को कानून न पढ़ाया होता। ये औरत तो गैर मुल्की है, मगर आपको तो कानून का इल्म होना चाहिए अब्बा। हमने इसका हल भी निकाल दिया है। हुनैन हिम्मत करके बोली तो जुमर गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। हम पेपर्स पे सादी भाई का नाम लिखवाएंगे। जुमर के तासुरात बदले। वो हिल कर रह गई। सादी का क्यों? वो एकदम तड़प कर मुतवाइज सी बोली, फिर गुस्से से अब्बा को देखा। शादी का नाम किडनी डोनर के तौर पे कभी भी नहीं लिखेंगे आप लोग। ठीक है, नहीं लिखते, लेकिन अगर ये फ्रेंच अमेरिकन औरत नहीं देगी, बड़े अब्बा ने अलीशा की तरफ इशारा करके संजीदगी से कहना शुरू किया, तो किसी खून के रिश्तेदार को देना पड़ेगा। फहरस्त बताते हैं, पहले नंबर पे मैं हूँ। मेरा मैच न किया तो फिर शादी हो गया, और फिर हुनैन। अगर उसका भी ना लग सका तो उसामा तो है ना। अब्बा, उसके दिल पे किसी ने पैर रख दिया था। सदमे से आंखें गुलाबी पड़ने लगी। बिल्कुल भी ना कहना जुमर कि तुम तंदुरुस्त नहीं होना चाहती। हर कोई तंदुरुस्त होना चाहता है। तुम अलग नहीं हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। जुमर बिल्कुल चुप हो गई, बेबसी से सर झुका लिए लब काटने लगी। दिल बहुत बुरे अंदाज में दुखाया था नैन की बात ने, मगर ये गैर कानूनी है। उसकी आवाज़ अब के कमज़ोर थी। हाँ, और जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी गैर कानूनी था। जुमर की आंखों में कुर्ब के साथ तैश उभरा। हुआ नहीं, जो मेरे साथ फारिस ने किया वो गैर कानूनी था। फुफ्फो, मैं उधर थी, मामू ने आपको कोई कॉल नहीं की, मैं झूठ नहीं बोल रही। उसके बेड के दाएं तरफ खड़ी हुनैन बेबसी से बोली। जुमर ने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करते हुए सर झटका और पीछे हुई। अब की बोली तो आवाज़ संभली हुई थी। मुझे मालूम है तुम झूठ नहीं बोल रही। फारिस बहुत स्मार्ट है, उसे तुम्हें जिद करने का हर तरीका आता है। हुनैन को धचका लगा। बहुत बेयकीनी से फैली आंखों से उसने जुमर को देखा, जो अब अपना लिहाफ दुरुस्त कर रही थी। यानी आप मुझे झूठा नहीं समझती, बल्कि आप मुझे बेवकूफ़ समझती हैं। ये सदमा ज़्यादा बड़ा था। जुमर अनसुना करती लिहाफ ठीक करके पीछे हो गई। हुनैन के लब भींच गए। बड़े अब्बा की माजरती नज़रों को देखे बिना दूसरे लहजे में बोली, ओके पप्पू, हम सादी भाई का नाम लिखवा कर आपको हर्ट नहीं करेंगे। हम हुनैन यूसुफ का नाम लिखवा देंगे। आप ठीक है ना? वो कहकर एकदम मुड़ी और गो कि उसने देखा भी कि जुमर बेसाख्ता नरम पड़ी थी। उसे मना करने को कुछ कहने वाली थी, मगर हुनैन इन तीनों को वहीं छोड़कर बाहर निकल आई। सादी कॉरिडोर में खड़ा था, बेसाख्ता सीधा हुआ, उम्मीद से उसे देखा। क्या उन्होंने यकीन कर लिया? कर लेंगी, अपनी सेहत के लिए सब कर लेते हैं, वो तलखी से बोली। सादी का दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। गौर किए बिना जुमर के कमरे का बंद दरवाज़ा देखने लगा।